شادی تیرے بیٹے کے ہوگی، برکت مدینے سے اتار دی جائے گی۔ ہاں لیکن ہم نے کیا ظلم کر رکھا ہے صاحب، بیٹیوں کے باپ کا نیند ختم کر دیا ہے، بیٹیوں کے باپ کو اتنا ہم ستا رہے ہیں۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں نکاح کو اتنا آسان کر دو کہ دنیا سے برائی کا خاتمہ ہو جائے، لیکن ہم نے نکاح کو کتنا مشکل کر رکھا ہے۔ کیوں مشکل ہے صاحب؟ آج ہماری قوم کی، آج اسلام کے ماننے والی کنیز فاطمہ ہمارے گھر کی بیٹیاں رو رہی ہے، ہماری وجہ سے نا، ہم ہی کو شادی کرنا ہے نا، اپنے بیٹوں کی ہی شادی کرنا ہے نا، لیکن صاحب ہمارے قوم میں، ہمارے گھر میں، اسلام میں پیدا ہونے والی بیٹیاں رو رہی ہے۔ جانتے ہو بیٹیوں کو میرے آقا نے کہا تھا جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ جس پیغمبر نے بیٹی کو اللہ کی رحمت کہا ہے، اس بیٹی کو ہم رلائیں گے تو بتا مدینے والے مصطفیٰ کا جگر پہ کیا گزرے گا، مدینے والے مصطفیٰ کے دل پہ کیا گزرے گا۔ آج جس بیٹی کو مصطفیٰ نے جنت جانے کی ضمانت کہا ہے، بتا اگر بیٹیوں کو تڑپائیں گے تو مدینے والے آقا کے جگر پہ کیا گزرے گا۔ آقا نے بھی شادی کی ہے، آقا کے پاس بھی رب نے 4 بیٹیاں عطا کی ہے، رب نے 4 بیٹیاں میرے مصطفیٰ کو دی ہے۔ اگر یہ بیٹیاں ہمارے لیے بوجھ ہوتی، اگر بیٹیاں ہمارے لیے زحمت ہوتی تو اللہ کبھی اپنے محبوب کو 4 بیٹیاں نہیں دیتا، لیکن مصطفیٰ کو بھی رب نے 4 بیٹیاں عطا کی ہے۔ لیکن جانتے ہو مصطفیٰ نے بھی اپنی بیٹیوں کی شادی کی ہے، اس شادیوں کو جانتے ہو کتنا سستا کیا ہے صاحب۔ میرے آقا نے بھی خود نکاح فرمایا ہے، اور ایک نکاح نہیں فرمایا ہے، 11 بیویوں سے تعلق رکھنے والی ذات کو مصطفیٰ جان رحمت کہا جاتا ہے، 11 بیویوں سے نکاح کرنے والے کو مصطفیٰ جان رحمت کہا جاتا ہے۔ اس کی امتی میں ہم پیدا ہوئے ہیں، ہمیں کیا پتا صاحب، آج ایک نکاح کرتے ہیں اسی میں بیٹی کے باپ کا کمر توڑ دیتے ہیں، آج ایک شادی اپنے بیٹے کو کرنے جاتے ہیں اسی شادی میں بیٹیوں کے باپ پہ ظلم کر دیتے ہیں۔ ہمیں کیا پتا جس بیٹی کو رحمت بنا کر کے رب نے بھیجا ہے، میدان حشر میں اس بیٹی کو کھڑا ہونا ہے، رب کی بارگاہ میں التجا کرے گی، اللہ تو نے تو بیٹی کو رحمت بنا کر کے بھیجا تھا۔ رب کہے گا ہاں میں نے تجھے رحمت بنا کر کے بھیجا تھا۔ بیٹیاں کہے گی اللہ رحمت کیسا، ہماری عمر 30 سالہ ہو گئی تھی، کوئی میرا رشتہ لے کر کے نہیں آ رہا تھا، ہماری عمر 25 سالہ ہو گئی تھی، کوئی میری شادی کے لیے نہیں آ رہا تھا۔ آج ہماری وجہ سے بیٹیاں کوئی بھگ جا رہی ہے، کوئی غیروں کے ساتھ جا رہی ہے، کوئی مر جانے پہ مجبور ہو رہی ہے، کوئی مرتد ہو جا رہی ہے۔ آج نہ جانے کتنی بیٹیوں نے اسلام کا دامن چھوڑ دیا ہے، کتنی بیٹیوں نے اسلام کو چھوڑ کر کے غیروں کے ساتھ بھگ جانے پہ مجبور ہو رہی ہے۔ اس کا ذمہ دار کون ہے صاحب؟ ہم ہیں۔ ہم نے شادیوں کو مشکل کر رکھا ہے، ہم نے شادیوں کو مہنگا کر رکھا ہے۔ آقا نے ارشاد فرمایا ہے نکاح کو آسان کر دو، اس لیے کہ یہ بیٹیاں رب کی بارگاہ میں کھڑا ہو کر عرض کرے گی اللہ تو نے تو رحمت بنا کر کے بھیجا تھا، لیکن میرے باپ کے پاس دولت نہیں تھا تو لوگ میرے رشتوں کا انتظام نہیں کر رہے تھے، میرا باپ کنگال تھا، اللہ میرے باپ کو تو نے غریب بنایا تھا، تو بتا اس بیٹی کا کیا قصور تھا؟ اگر میرے باپ کو زمین نہیں دیا تھا تو بتا مولا اس بیٹی کا کیا قصور تھا؟ اگر میرے باپ کے پاس دولت نہیں دیا تھا تو اللہ بتا اس بیٹی کا کیا قصور تھا؟ اللہ کہے گا ارے آج گھبرا نہیں، آج میری بارگاہ میں آ گئی ہو، جب تک امیروں کو میں پتا نہیں دوں گا، ہاں جب تک میں سب کا حساب نہیں لے لوں گا اس وقت تک جنت میں کسی کو جانے نہیں دوں گا۔ خدا کی قسم میدان حشر میں بیٹیاں شکایت کرے گی، اللہ کہے گا آپ بیٹی فیصلہ کر رہا ہوں آ جا، ارے تو اشارہ کر دے کس نے ظلم کیا ہے۔ بیٹی اگر اشارہ کر دے گی، اشارہ کرنا بیٹیوں کا کام ہوگا، اور خدا کی قسم جہنم میں ڈالنا یہ خدا پاک کا کام ہوگا۔ لیکن ہم نے نہیں ڈرا، ہم نے اسلام نہیں سمجھا، شادیوں کو کتنا مشکل کر دیا ہے۔ کیوں مشکل کیا ہم نے؟ آج اللہ کے محبوب فرما رہے ہیں شادی نکاح سستا کر دو، آسان کر دو، تاکہ دنیا سے بے حیائی کا خاتمہ ہو جائے۔ بے حیائی کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ آج بیٹیاں دوسروں کے ساتھ کیوں بھاگ رہی ہے؟ آج بیٹیاں کوئی کیوں مر جا رہی ہے؟ شادی کے بعد بھی اس بیٹی کو تانا دیا جاتا ہے، تمہارے باپ نے کیا دیا ہے؟ اب وہ بیٹیاں سسرال میں تانا سن سن کر کے کوئی دریا میں ڈوب جا رہی ہے، کوئی کٹ جا رہی ہے۔ ایسی ہسٹری سوشل میڈیا کا زمانہ ہے۔ ہاں صاحب آج فیس بک یوٹیوب کا زمانہ ہے، آپ نے کئی خبریں اسے سنا ہوگا۔ ہاں کبھی عائشہ نام کر کے جان دے دیتی ہے، کبھی مسکان نام کر کے جان دے رہی ہے۔ ہاں صاحب یہ نام اسلامک نام ہے، آپ کو پتا ہے یہ مسلم قوم کی بیٹیاں مر رہی ہے، مسلم قوم کی بیٹیوں کا نام آ رہا ہے، آج غیروں کے ساتھ جا رہی ہے، آج مسلم قوم کی بیٹیاں مرتد ہو رہی ہے۔ صاحب اس
इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार यही है, इसका वजह यही है, हमने शादियों को मुश्किल कर रखा है, हमने शादियों को महंगा करके रखा है। अल्लाह के महबूब भी शादी किए हैं, अपनी बेटियों को रुखसत कर रहे हैं। जानते हो, एक बेटी का मैं जिक्र कर रहा हूं जिसे सैयदा तैयबा ताहिरा पाकिज़ा आबिदा सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहा जाता है। सबसे प्यारी बेटी को फातिमा कहा जाता है। कोई अगर बेटियां दुनिया में है, कोई बेटी दुनिया में नहीं है जो सैयदा फातिमा के मुकाबले में खड़ी हो जाए। कोई ऐसा लड़का नहीं है जो हजरत अली के मुकाबले में खड़ा हो जाए। सैयदा फातिमा है, हुजूर की प्यारी बेटी को फातिमा कहा जाता है, सबसे लाडली बेटी को फातिमा कहा जाता है। उसके तकवा और तिहारत का ये आलम था साहिब। इबादत करते करते रात खत्म हो जाती थी, लेकिन फातिमा का सजदा मुकम्मल नहीं होता था। हाँ साहिब, फातिमा के परहेजगारी का ये मतलब है। आका ने उसकी शादी कैसे कर रहे हैं? बड़े बड़े करोड़पति आए थे, या रसूलुल्लाह बेटी फातिमा कहाँ दे दो, या रसूलुल्लाह हम मालदार हैं, अपनी बेटी फातिमा का निकाह हमारे साथ करा दो, या रसूलुल्लाह आपकी प्यारी बेटी फातिमा की शादी हमारे साथ करा दो। हम वक्त के करोड़पति हैं, हम वक्त के जमींदार हैं, हम वक्त के मालदार हैं, लेकिन आका ने सबको ठुकराते गया है। कहा जा, चला जा, मैं करोड़पति के हवाले अपनी बेटी को नहीं करूंगा, मैं दौलतमंद के हवाले अपनी बेटी को नहीं करूंगा। आज वो सुने जो अपनी बेटियों को आज दौलत की वजह से किसी घर में डाल दे रहा है। अगर देखा जा रहा है, मुआशरे की बात करूं ना, आज लोग बोलते हैं देखो फला लड़का 50,000 कमाने वाला है, फला 60,000 कमाने वाला है, हमने उसको अपना बेटी हवाले कर दिया, सिर्फ हमने माल देखा है। लेकिन आका ने फरमाया है तुम्हें माल नहीं देखना है पहले, तुझे खानदान नहीं देखना है पहले, तुझे हुस्न नहीं देखना है पहले। आका फरमाते हैं सबसे ज्यादा तवज्जो तुझे उसके दीनदारी पे होना चाहिए। लेकिन हमने तो लड़का का माल देख लिया, 50,000 कमा रहा है, चलो उसको बेटी दे दो, मेरी बेटी सुख से रहेगी। हाँ, लड़का 90,000 कमा रहा है, चलो उसे 10 लाख देना पड़ेगा, दिया जाएगा, मगर बेटी को हवाले किया जाएगा, इसलिए उस घर में बेटियां चैन से रहेगी। खुदा की कसम, बेटियां दौलतमंद के घर में चैन से नहीं रहती है। आज चला जा, देखना चाहता है, कोर्ट और कचहरियों का जायजा ले ले। आज अमीर घराने की बहुएं कचहरियों में नजर आ रही है, आज अमीर घराने की फाइलें कचहरियों में नजर आ रहे हैं, आज अमीर घराने की बहुओं को फाइलें आज कोर्ट कचहरियों में नजर आ रहे हैं। यार, अमीर घराने में कितनी बेटियां सताई जाती है, कितनी तड़पाई जाती है। आपकी बेटियों को खादमा बना करके रखा जाता है, आपके बेटियों को वहां नौकरानी बना करके रखा जाता है। मुस्तफा के सुन्नत के मुताबिक, मुस्तफा के फरमान के मुताबिक माल ना देखना, हुस्न ना देखना, खानदान ना देखना, सबसे पहले लड़के का दीनदारी देख लेना। अगर लड़का खुदा वाला भी है, मुस्तफा वाला भी है, अपनी बेटी का निकाह करा देना, इसलिए कि जो अल्लाह और उसके रसूल का फरमाबरदार होगा वो तेरी बेटी के साथ कभी गद्दारी नहीं कर सकता है। हाँ, जो अल्लाह और उसके रसूल का फरमाबरदार होगा, जो अल्लाह और उसके रसूल की इबादत करने वाला, अल्लाह और उसके रसूल का हक अदा करने वाला होगा, वो आपके बेटी को कभी सताएगा नहीं, सूखी रोटी खिलाएगा, आधी जहां एक खाना होगा आधा टुकड़ा खिलाएगा, मगर आपके बेटी पे कभी जुल्म नहीं करेगा। हाँ साहिब, कभी आपके बेटियों को सताया नहीं जाएगा। जानते हो, आका ने फरमाया बेटियां दौलत से सुकून नहीं पाती है, बेटियां दौलतमंद के घर में सुकून से नहीं रहती है। जिस घर में मुस्तफा का कानून चलता है, जिस घर में मुस्तफा का दस्तूर चलता है, जिस घर में इस्लामिक जिंदगी होती है, उसी घर में बेटियां सुकून से रहती है। आज मालदारों के घरों का जायजा ले ले, मालदारों के घरों में बेटा ऐश के साथ जिंदगी गुजार रहा है। हाँ, कभी बाइक का एक्सीलेटर झाड़ करके जा रहा है, उसे दीन से कोई मतलब नहीं है, ना आलिम का एहतराम कर रहा है, ना मदरसों का एहतराम कर रहा है, ना मस्जिद का एहतराम कर रहा है। वो तो कर रहा है साहिब कि मेरा बाप तो 50,000 कमाने वाला है, वो तो बेटा कर रहा है। हाँ, मेरा बाप तो नौकरी वाला है, वो तो बेटा कर रहा है। मेरा बाप प्रोफेशनलिटी आदमी है। हाँ साहिब, एक बेटे की अकड़ है, अब वो अकड़ होगा, अब वो अकड़ बेटी के बाप से भी दिखाया जा रहा है। उसी बेटे की शादी में बाप ने जहेज का डिमांड किया है, लेकिन बेटियां आई है, अब उसकी अमीरी की बुनियाद पे बेटियां सताई जाती है, बेटियों पे जुल्म सितम किया जाता है। साहिब, जहां दौलतें होती है, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, कमा हक हूं, जहां दौलतें होती है वहां दीन नहीं होता है। अगर दीनदारी है, गरीबी है, झोपड़ी में रहने वाला है, उसके घर अपनी बेटी का शादी कर दो, इसलिए कि झोपड़ी में रहने वाला अगर खुदा रसूल का फरमाबरदार है तो आसमान से फरिश्ते उसके जियारत के लिए उतरा करते हैं। अगर झोपड़ी में रहता हो, अल्लाह और उसके रसूल का फरमाबरदार हो, तो उसके जियारत के लिए आसमान से फरिश्ते आते हैं। हाँ, हम क्या जाने साहिब इस्लाम क्या है, मरने के बाद सबका स्टेटस यही रह जाएगा। जिस दौलत को हम आज डिमांड कर रहे हैं, जिस दौलत को मांग रहे हैं, कितने दिन तक खाएंगे साहिब? जबकि अल्लाह के महबूब ने फरमाया
سختی کے ساتھ کسی لڑکی کے باپ سے جہیز مانگنا یہ حرام ہے. آقا فرماتے ہیں میدان حشر میں وہ اس حال میں کھڑا ہوگا، میدان حشر میں اس حال میں کھڑا ہوگا کہ اس کے چہرے پہ گوشت کا لتھڑا نہیں ہوگا، ہڈی کے ڈھانچے میں کھڑا ہوگا. کب تک کھائیں گے صاحب ہم؟ کب تک اس کی دولتوں کے انتظار میں رہیں گے؟ آج صاحب گھروں میں اگر ہم سب چیز آیا، جانتے ہیں سب چیز ہم نے دیکھ لیا، شادی کرنے بھی جاتے ہیں، دولت بھی دیکھا، زمین بھی دیکھا، ہم نے اس کا خاندان بھی دیکھا، حسن بھی دیکھا، لیکن نہیں دیکھا تو اس کی دینداری نہیں دیکھا. اگر شادی اپنے بیٹے کے کرنے جا رہے ہیں تو بیٹی دیندار دیکھنا ہے، مالدار نہیں. اللہ کے محبوب نے فرمایا 4 چیزوں کے بنیاد پر لوگ نکاح کرتے ہیں. 1 نمبر مالداری کے بنیاد، دوسرا نمبر حسن کے بنیاد، تیسرا خاندانی بیک گراؤنڈ کے بنیاد، چوتھی چیز مصطفیٰ فرماتے ہیں دینداری کے بنیاد پر بھی نکاح کیا جاتا ہے. تب آقا ارشاد فرماتے ہیں ان 4 میں سے سب سے زیادہ دھیان، سب سے زیادہ توجہ ہمیں دینداری پر دینا چاہیے. سب سے زیادہ ہمیں دیندار دیکھنا چاہیے. لیکن ہم نے سب چیز دیکھا. اگر جاتے ہیں رشتوں کے لیے نا، ہم لڑکی کے بیک گراؤنڈ کا پتہ کر لیتے ہیں، لوگوں سے کہتے ہیں پتہ کرو اس کا باپ کس نوکری میں فائز تھا. ہم تو دیکھتے ہیں اس لڑکی کے گھر کے آگے پیچھے گھوم کر کے دیکھ لیتے ہیں، دیکھو اس کا زمین کتنا ہے، اس کا مکان کتنا اونچا ہے. گھر کے اندر بھی گھوس کر کے دیکھا جاتا ہے، دیکھ لو اس کا کمرہ کتنا چوڑا بنا ہے، کتنا لمبا بنا ہے. ہم نے اس کے دولت کو دیکھا ہے صاحب، اس کے دولت کے بیک گراؤنڈ کا جائزہ لیا ہے. اور کوئی بھائی صاحب اٹھا کر کے پردے کو دیکھتا ہے، صاحب لڑکی کے بدن سے دوپٹہ اتروا کر کے دیکھا جاتا ہے، دیکھ لو اس کے گردن تک دیکھا جاتا ہے، کوئی پیجامہ اٹھا کر کے دیکھا جاتا ہے. ہم نے تو اس کا حسن دیکھا ہے صاحب، کبھی کپڑے کو ہٹا کر کے حسن دیکھا ہے، کبھی دوپٹے کو ہٹا کر کے حسن دیکھا ہے، ہاں کبھی بالوں کو کھلوا کر کے لڑکی کا حسن دیکھا ہے، کبھی اس کے گھر کے پیچھے گھوم کر کے اس کا مال دیکھا ہے، اس کا زمین دیکھا ہے، اس کے باپ کے نوکری کو دیکھا ہے، اس کے باپ کو خزانے کا پتہ کیا ہے. ہاں صاحب اور آگے میں بات کروں، اس کے خاندان کے بارے میں بھی ہم نے دیکھا ہے، اس کے خاندان کے بارے میں بھی ہم نے پتہ کیا ہے. پوچھ لو اس کا خاندانی بیک گراؤنڈ کیا ہے، ارے یہ پٹھان ہے یا نہیں، یہ انصاری ہے یا نہیں، یہ ترکی ہے یا نہیں. ارے علامہ اقبال کے شاعری کو ہم نے بھول بیٹھا ہے. یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو، ارے تم سبھی کچھ ہو، یہ تو بتاؤ کیا مسلمان بھی ہو. ہم نے بھولا بیٹھا ہے. ہم نے خاندان کا بھی جائزہ لیا ہے، اس کے مال کا بھی جائزہ لیا ہے، اس کے حسن کو بھی دیکھا ہے، لیکن ساری چیزیں ہم نے دیکھ لیا ہے. اگر نہیں دیکھا تو دینداری نہیں دیکھا ہے، اگر نہیں دیکھا اس کے بدن پہ پورا کپڑا نہیں دیکھا ہے، پردے والی لڑکی نہیں دیکھا ہے. ہم نے تو اسٹائل دیکھا ہے، ہم نے تو مال دیکھا ہے، ہم نے تو خاندان دیکھا ہے. اگر نہیں دیکھا تو لڑکی کا کردار نہیں دیکھا ہے. کاش یہ پتا کرتا، اس کے اڑوس پڑوس میں اس کے بیک گراؤنڈ میں یہ جائزہ لے لیتا، اس کے بیک گراؤنڈ میں گھوم کر کے یہ پتا کرتا، لوگوں یہ بتایا جائے یہ لڑکی قرآن پڑھنے والی ہے یا نہیں، یہ نماز پڑھنے والی ہے یا نہیں، یہ ماں باپ کی خدمت کرنے والی ہے یا نہیں، ہاں یہ عبادت کرنے والی ہے یا نہیں، یہ کہیں بے پردہ مارکیٹ گھومنے والی تو نہیں ہے. ارے ایسا پتا کر لینا، خدا کی قسم اگر 2-4 آدمی کہہ دے ارے یہ لڑکی دیندار ہے تو اپنے گھر کا بہو بنا لینا. اس لیے کہ جب ایسی لڑکی آپ کے گھر میں آئے گی تو کبھی آپ کے گھر میں سیریل نہیں چلیں گے، کبھی ٹی وی نہیں چلیں گے، کبھی پکچر نہیں چلیں گے. جب آپ کے گھر میں آئے گی تو کبھی قرآن کی تلاوت کرے گی، کبھی نماز پڑھے گی، ہاں کبھی حج و زکات کا مسئلہ بتائے گی. اور جو اولاد پیدا کرے گی وہ دیندار پیدا کرے گی. اور جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے گی اللہ اس گھر میں برکتیں دے دینا، خدا کی قسم اس کا ہاتھ نیچے بعد میں آئیں گے، اللہ کی رحمتیں پہلے اتار دی جائے گی. ہم نے لڑکی کا سب بیک گراؤنڈ پتا کیا لیکن اس کے دینداری کا بیک گراؤنڈ نہیں دیکھا. کسی سے پتا نہیں کیا کہ لڑکی کو سب بتایا جائے دیندار ہے یا نہیں. لڑکی کے بیک گراؤنڈ دیکھا جائے، دیندار دیکھا جائے. آقا نے ارشاد فرمایا 4 میں سے سب سے زیادہ دھیان ہمیں دینداری پر دینا چاہیے. لیکن ہم نے تو 4 میں سے 3 چیز کا خوب جائزہ لیا ہے، ہم نے سب چیز دیکھ لیا ہے. اگر جس کو مصطفیٰ نے حکم دیا ہے اسے ہم نے نہیں دیکھا ہے، کبھی دینداری ہم نے نہیں پوچھا ہے. یہی ریزن ہے صاحب، نہ ہمارے گھر کے بیٹے دیندار ہیں. جب بیٹے ہمارے دیندار نہ ہوں گے تو پھر بیٹیاں دیندار کیسے آئے گی؟ اگر ہمارے گھر کے لڑکے دیندار نہ ہوں گے، ورنہ تو صاحب آج کے حالات ہے، آج مدرسوں کا جائزہ لے لینا تو 75% لڑکیاں پڑھنے جاتی ہے. کیوں جاتی ہے لڑکیاں؟ تاکہ کم سے کم میری بیٹی قرآن پڑھنا سیکھ جائے، اس کی شادی ہو جائے گی. صرف شادی کرنے کے لیے بیٹیوں کو پڑھایا جا رہا ہے. لڑکے کتنے ہیں؟ 5% بھی لڑکے نہیں جاتے ہوں گے مدرسے میں کہ کم سے کم قرآن پڑھنا سیکھ لے. آج دیکھے تو مدرسوں میں اکثر بچیاں نظر آتی ہے
इसलिए कि घर वाले चाहते हैं मेरी बेटी सिर्फ कुरान पढ़ लेना, तो ताकि मेहमान आकर के पूछेंगे एक दो सूरा सुना देगी, इसकी शादी फिट हो जाएगी। हाँ साहिब, हमने कितना टाइम दिया है, सिर्फ अपने बेटियों को चाहते हैं कि कुरान पढ़ ले, कभी उसको इस्लाम की हिस्ट्री नहीं बताया। हम तो बेटियों को इंग्लिश मीडियम से पढ़ाते हैं, MBBS बनाने की कोशिश करते हैं, डॉक्टर बनाते हैं, सारी डिग्रियां बेटियों को दिलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमें क्या पता साहिब, वो डिग्रियां हासिल भी कर रही है और आपकी बेटी आपके हाथ से निकल भी रही है। हाँ, डिग्रियों के चक्कर में आपकी बेटी आपकी नफरमान हो रही है, डिग्रियों के चक्कर में आज हमारी बेटियां मुर्तद हो रही है, उन डिग्रियों के चक्कर में आज बेटियां भग रही है। साहिब मैं कहना चाहूंगा, आप डिग्रियां ना दिलाए, अरे ऐसी डिग्री को ठोकर मार दे जो आपके घर को बर्बाद कर रहा है। अरे मुस्तफा वाली तालीम की डिग्री दिला दे, खुदा की कसम, जब आप मुस्तफा वाले तालीम की डिग्री आपके बेटी के पास होगी, कोई भूखा कोई हवस का शिकार आपके बेटी के ऊपर उंगली उठाएगा, उसकी उंगली को तोड़ करके जवाब देगी, अरे सुनो, मैं कनीज़े फातिमा में पलने वाली हूं, मैं जान तो दे सकती हूं मगर मुस्तफा का ईमान नहीं जाने दे सकती हूं। ऐसी डिग्री दिला बेटियों को। लेकिन हमारे बेटे दीनदार नहीं है, बेटे तो शराब कादी है, जुआ कादी है। बाप ने झूठ बोला बेटियों के बाप से, मेरा बेटा 90,000 कमा रहा है। अब बेटी वाला भी सोचता है यार 90,000 कमा रहे, तो बीच वाला से जल्दी से कहता है ऐसा करो मैं 10 लाख देने के लिए तैयार हूं, इसी बेटे के साथ होना चाहिए। बाप क्योंकि लेने के खातिर मुआशरे में झूठ बोला, शादी से पहले मेहमानों के बीच में कहा मेरा बेटा अभी 90,000 का सैलरी उठा रहा है। अब लड़की का बाप खुश हो जाता है, कहता है चलो मैं 10 लाख देने के लिए तैयार हूं, मगर इसी लड़के के साथ मेरी बेटी की शादी होनी चाहिए। और शादी के बाद नतीजा क्या सामने आता है, जिस बेटे को 90,000 जाहिर करके शादी फिट हुई थी ना, अब शादी के बाद वो बेटा बाप को 4,000 भी कमा करके नहीं दे रहा है। वही बेटा मौलवी के पास तावीज के लिए दौड़ रहा है, मौलाना साहब आप तावीज दे दो। मेरा बेटा जब तक शादी नहीं हुई थी ना मेरी इज्जत कर रहा था, जब तक शादी नहीं हुई थी ना मेरा फर्माबरदार था, जब तक शादी नहीं हुई थी ना, जब तक माँ की भी इज्जत करता था। लेकिन आज बाप को थप्पड़ मारने के लिए तैयार हो जाता है, आज बाप को गालियां देने के लिए तैयार हो जाता है। आज देखना साहिब, ठंडी का सीजन आ रहा है, कितना बाप ठंडियों में सिकुड़ करके सोएगा, वही पुरानी कंबल पे एक बाप सोता है, पुरानी कंबल ओढ़ करके माँ सोएगी। लेकिन साहिब ये बेटे को जिस बाप ने ऊपर मजदूरी करके, जिस बाप ने मेहनत करके बेटों को जवान किया है, शादी किया है, अब शादी के बाद वही बेटा बीवी के साथ मौज कर रहा है, बीवी के साथ ऐशो इशरत कर रहा है और दिए हुए ससुर के बेड पर सो रहा है। अच्छा कंबल भी है, अच्छा रजाई भी है, अच्छा बेड भी है, लेकिन बेटे को कभी तौफीक नहीं होती है। अपने बाप का जरा जायजा ले लूं, इस ठंडी के मौसम में मेरा बाप वही 25 साल कंबल ओढ़ करके सो रहा है, मेरी माँ 25 साल चादर ओढ़ करके सो रही है, वही 25 साल टूटी चरपाई पर सो रही है। ये बेटे को तौफीक नहीं होती है। साहिब नतीजा क्या सामने आता है, जो शादी से पहले बाप ने कहा था 90,000 कमा रहा है, वो शादी के बाद 4,000 भी देने तैयार नहीं होता है। इसका रीजन ये है, हमने बेटे को डॉक्टर तो बनाया था, इंजीनियर तो बनाया था, प्रोफेसर तो बनाया था, हमने 90,000 कमाने के लायक बना दिया, मगर बाप की खिदमत करने लायक नहीं बनाया था। इसलिए कि डॉक्टरियत लाइन में उसे ये बताया जाता है किस मर्ज में कौन सा इंजेक्शन दिया जाता है, इंजीनियरिंग लाइन में ये बताया जाता है किस मकान में कितना पिलर दिया जाता है, हाँ उसे प्रोफेशनलिटी में ये बताया जाता है किस लिबास को प्रोफेशनलिटी में पहन करके आया जाता है। लेकिन उसमें ये नहीं बताया जाता है कि तेरी माँ का हक क्या है, तेरा बाप का मकान क्या है, तेरी बीवी का हक क्या है, उसमें कुछ नहीं बताया जाता है। काश तुम सब चीज बनाओ, डॉक्टर बनाओ, प्रोफेसर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, मना नहीं करता, लेकिन सबसे पहले उसे मुस्तफा की तालीम दे दो, कभी कुरान पढ़ा दो, कभी हदीस सिखा दो, अपने औलादों को दीनदार बना दो। अगर औलादे दीनदार होगी, वक्त का कुछ भी होगा, वो यही कहेगा यार ये मेरा बाप है जो जन्नत का दरवाजा है, ये मेरी माँ है जिसके कदमों में जन्नत है। अगर बाप के खातिर जान देने की बारी आएगी, जान दे देगा, हंसते हंसते यही कहेगा लो बाप, अरे जान दे दी ही तुम ही की थी, हक तो ये है कि हक अदा ना हो सका। बाप को जान दे देगा, लेकिन आज वक्त नहीं दे रहा है, एक बाप बेटे को टाइम नहीं दे रहा है, एक माँ बेटी को टाइम नहीं दे रही है। इसका रीजन सीधा साधा है कि हमारे घर में इस्लाम नहीं रह चुका है, हमारे घर में मुस्तफा का निजाम नहीं रह चुका है।
जिस घर में मुस्तफा का निजाम होगा, इस्लामी कानून होगा, उस घर के बेटे भी बाप के वफादार होंगे, उस घर के बेटियां भी मां की वफादार होगी, हाँ उस घर के बेटियां भी दीनदार होगी। जरूरत है, अगर घर को बचाना चाहते हैं, घर को कामयाब करना चाहते हैं, अपने घरों में इस्लामी कानून नाफिज करने की जरूरत है, अपने घरों में मुस्तफा की हदीस सुनाने की जरूरत है। अपने बेटियों को बैठाकर, अपने बेटों को बैठाकर कभी सहाबा इकराम का किस्सा सुनाओ, हाँ कभी वलियों की जिंदगी पढ़ाओ, कभी मुस्तफा की जिंदगी पढ़ाओ, कभी फातिमा की जिंदगी पढ़ाओ, कभी सैयदा खदीजतुल कुबरा की जिंदगी पढ़ाओ। खुदा की कसम, अगर बेटों को बैठाकर आप दीन बताएंगे तो आपका बेटा जवान भी हो जाएगा तो घर में रहेगा तो बाप का वफादार होगा, और मर के कब्र में जाएगा तो रसूल पाक का वफादार होके जाएगा। तो जरूरत है घर में दीन फैलाने की, दीन बताने हो गया है। जरूरत है हमें और आपको, जरूरत है हमें और आपको घरों में दीन नाफिज करने की। शादी, आका ने इरशाद फरमाया, चारों चीजों में से सबसे ज्यादा हमें ध्यान, सबसे ज्यादा तवज्जो हमें दीनदारी पर देना है, दीनदारी पर देना है। लेकिन साहिब हमने सारी चीजें देख लिया, अगर नहीं देखा तो दीनदार नहीं देखा। आका ने भी अपनी बेटी की शादी कर रहे हैं, बड़े बड़े करोड़पति आए थे, या रसूलल्लाह अपनी बेटी का हाथ मुझे दे दो, या रसूलल्लाह बेटी फातिमा का निकाह हमारे साथ कर दो। लेकिन आका ने सबको इनकार करते गए, सबने पैरवी लेकर के गया था, या रसूलल्लाह आपकी बेटी का हाथ मुझे मिलना चाहिए, मैं बहुत बड़ा मालदार हूं, मेरे पास बहुत ज्यादा दौलत है, मेरे पास बहुत ज्यादा जमीन है। लेकिन देख आका ने फैसला कर रहे हैं, अपनी बेटी का शौहर ढूंढ रहे हैं, हाँ अपने लिए दामाद ढूंढ रहे हैं। देख लो आज वक्त के अमीरों, आज देख लो वक्त के पैसे वालों, मेरे आका से ज्यादा अमीर कौन है इस दुनिया में, मेरे आका से ताकतवर कौन है इस दुनिया में। सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है, मेरे आका ने, मेरे सरताज ने एक मर्तबा कहा था, आयशा जानती हो तेरे शौहर के पास कितनी पावर है, इतना ताकत है आयशा कि अगर मैं पहाड़ों को इशारा कर दूं तो पहाड़ मेरे कदमों में सोना बन जाएंगे, मेरे कदमों में दौलत बन करके रेंगने लग जाएंगे। अरे आका से पावर वाला कौन है, आका से ताकतवर और दौलतमंद कौन है। लेकिन रिश्ता ढूंढ रहे हैं, अपने बेटी का शौहर ढूंढ रहे हैं, अपना दामाद ढूंढ रहे हैं। वक्त के करोड़पति आए हैं, मुस्तफा ने इनकार कर दिया, वक्त के दौलतमंद आए हैं, मुस्तफा ने इनकार कर दिया। इंतजार कर रहे हैं कि मैं वही का इंतजार कर रहा हूं, खुदा के हुक्म का इंतजार कर रहा हूं। इसी दौरान हजरत उमर और अबू बकर के कहने पे हजरत अली आ गए हैं आका की बारगाह में, आकर के बैठे हुए हैं। आका ने इरशाद फरमाया, अली क्यों आए हो मोहम्मद के दरवाजे पर, अली बता क्यों आए हो। अली, उमर ने कहा था, अबू बकर ने कहा था, अली तुम जाना हम लोगों ने हुजूर की बेटी का रिश्ता मांग लिए हैं। उमर ने भी बेटी का रिश्ता मांगा था, बेटी फातिमा का रिश्ता उमर ने भी मांगा था, अबू बकर ने भी मांगा था, लेकिन अल्लाह के महबूब ने कुछ जवाब नहीं दिया था। दोनों ने मशवरा किया, चलो अली को भेजते हैं, इसलिए कि अली वो है जिसके बारे में आका ने कहा है, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुल बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं तो अली उसका दरवाजा है। अली कहा उमर और अबू बकर ने, जा अली तू जाना बेटी फातिमा का रिश्ता मांग ले। गए हैं अली, कहते यार हमारी हैसियत क्या है, हमारे घर में तो चूल्हे नहीं जलते हैं, अगर सुबह को खाना रहता है तो शाम को नहीं खाता हूं, कई दिन फांके रह जाता हूं, हमारी औकात क्या है मोहम्मद की बेटी से हमारी शादी हो जाए। अली डर रहे हैं, देख मोहम्मद ने किसे इंतखाब किया है, कितना दौलत देखा है अली का। अली गए हैं, अबू बकर उमर के कहने पर गए हैं, जाने के बाद आका की बारगाह में बैठ जाते हैं। बैठ करके अली को हिम्मत नहीं हो रही है कि हुजूर मैं आपकी बेटी के लिए आया हूं, हिम्मत नहीं हो रही है, क्योंकि अली के पास क्या था, कुछ नहीं था साहिब। अली कहते थे मेरा तो उस वक्त का हालात ये था कि एक वक्त खाते थे दूसरे वक्त का नहीं रहता था। अली जाकर के बैठ गए हैं, कदमे रसूल में बैठे हैं। आका ने इरशाद फरमाया, अली बोल क्यों आए हो, क्या वजह है अली, कुछ अर्ज कर। अली अली बोल नहीं रहे हैं। 2 मरतबा आका ने पूछा था, अली बता ना क्यों आए हो। अली कुछ नहीं बोल रहे। तीसरे मरतबा अली ने कुछ नहीं कहा तो मेरे आका ने कहा था, अली तुम बताते हो या मैं बता दूं कि तुम क्यों आए हो। वाह रे आमना के लाल, तेरी शान पे मेरी जान कुर्बान। अली की दिल की बात आमना के लाल जान रहा है। अली बोल नहीं रहे हैं, जुर्रत नहीं हो रही है अली को फातिमा का हाथ मांगने के लिए। आका ने इरशाद फरमाया, अली तुम बोलते हो या तेरे दिल की बात मोहम्मद बोल दे, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। जिसकी निगाहों से खुदा नहीं छुप सकता है, उसकी निगाहों से अली के दिल की बात कैसे छुप सकती है। कहा, अली तुम बोलते हो या मैं बोलूं। अली अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह अली से बेहतर तो आप जानते हैं, अली से बेहतर तो आप जानते हैं कि अली आपके दरवाजे पर क्यों आया है। आका ने इरशाद फरमाया, अली
तुम मेरी बेटी फातिमा के रिश्तों के लिए आए हो ना? अली, तुम मेरी बेटी के लिए आए हो ना? अली ने हंसते हंसते गमज़दा इमोशनल होकर अली ने कहा था, हाँ या रसूलल्लाह, मैं तो आया था आपकी बेटी के लिए, मगर मेरी हैसियत नहीं है, मेरी औकात नहीं है, मेरे पास तो कुछ नहीं है। आका ने इरशाद फरमाया, अली टेंशन ना ले, तू उस बारगाह में आया है जिस बारगाह में अपना तो दूर की बात है, गैरों को भी इतना दिया जाता है कि बरेली से आवाज आती है, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। हाँ, इतना दिया जाता है, इतना दिया जाता है। उस बारगाह में तुम आ गए, अली टेंशन क्यों लेते हो, बस 2 मिनट ठहरो, मैं अपनी बेटी फातिमा से पूछ करके आ रहा हूं, अपनी बेटी से पूछ करके आ रहा हूं। आज कितने लोग हैं अपनी बेटियों से मशवरा करते हैं कि मैंने तेरे लिए ये लड़का देखा है, बता तेरी मर्जी है नहीं है। इस्लाम इसकी इजाजत दे रहा है। अगर आप अपने बेटे के लिए बहू देख रहे हैं तो तहकीक के साथ अपने बेटों से मशवरा ले ले, बेटे तुझे पसंद है या नहीं। शादी के बाद यही नतीजा होता है, हमने बेटों से दिखाया नहीं, हमने बेटियों से अपने उसके शौहर को नहीं दिखाया, शादी के बाद जो तिलाक की नौबत आती है ना, इसका रीजन यही होता है। तो वो बाप को बोझ हो जाती है बेटियां तिलाक वाली कागज लेकर जब घर में आती है। एक बाप 10 बेटी को पाल लेगा, उतना बोझ नहीं लगेगा जितना बोझ एक तिलाक का कागज लेकर के बेटी बाप के पास आ जाएगी, इतना बोझ होगा। तो साहिब, पहले आप बेटों और बेटों को सिखाए। आका ने इरशाद फरमाया, अली टेंशन ना ले, बस 2 मिनट इंतजार कर, मैं बेटी फातिमा से राय लेकर के आ रहा हूं। सुनेंगे आका का जवाब। अब बेटी के घर जा रहे हैं मुस्तफा, बेटी फातिमा से इजाजत लेने जा रहे हैं। वक्त के करोड़पति को इनकार कर दिया, गरीब अली को बैठाया, कहा रुक जा, मैं तो वही का इंतजार कर रहा था। और जानते हो अली, तुम मेरी बारगाह में मेरी बेटी के लिए बाद में आए हो, उससे पहले खुदा का हुक्म आ गया है। कहा अली 2 मिनट सब्र कर ले, मैं अपनी बेटी से पूछ करके आ रहा हूं। जब आका जा रहे थे अपनी बेटी के घर ना, बेटी के घर पढ़ रहे थे ना, इतने में जिब्रील आ जाते हैं आका की बारगाह में। कहा या रसूल आप किधर चले? आका ने इरशाद फरमाया, जिब्रील मैं अपनी बेटी से इजाजत लेने जा रहा हूं, अली मेरे दरवाजे पर बैठा है, मैं रिश्तों के लिए इजाजत लेने जा रहा हूं। जिब्रील ने कहा था, या रसूलल्लाह, अल्लाह ने हुक्म फरमा दिया, अल्लाह ने आपके पास मुझे खबर दे करके भेजा है कि जा महबूब से कह दे कि फातिमा के लिए अली से बेहतर दुनिया में कोई लड़का नहीं है, और जा मुस्तफा से कह दे कि अली के लिए ही फातिमा बनाई गई है। इतना सुना ना आका ने इरशाद फरमाया, जिब्रील ये तो मुझे भी पता है, ये तो मैं भी जानता हूं, लेकिन मुझे उम्मतियों को पैगाम भी देना है, उम्मतियों को सबक भी देना है। कहा कैसा सबक? कहा यही सबक आज जो हम बेटियों का रिश्ता करते हैं साहिब, लड़का तो ढूंढते हैं, अगर लड़का का लड़की ढूंढने हम जाते हैं ना तो दिखा देते हैं, अपनी बीवी से दिखा करके कहते हैं, देख हमने बेटों के लिए बीवी ये लड़की ढूंढ करके लाया हूं, ये जरा लड़की को दिखा, बेटे से पूछ इससे शादी करने की मर्जी है या नहीं। हमने बेटों से तो दिखा देते हैं, लेकिन बेटियों से कोई नहीं दिखाता है, बेटी से कोई नहीं दिखाता है। बेटी मैंने तेरे लिए ऐसे लड़के का इंतखाब किया है, तेरे लिए ऐसा लड़का तलाश किया है, बेटियों से नहीं दिखाया जाता है। और बेटियां उफ तक नहीं कहती है, बाप के कहने के मुताबिक बेटियां कबूल कर लेती है, बाप के कहने के मुताबिक बेटियां शादी कर लेती है। अब बाप जिस खूंटे में बांधना चाहता है बांध देता है, जैसा लड़का ढूंढना चाहता है ढूंढ देता है, मगर बेटी से राय नहीं लेता है। और जानते हो बेटियां खुशी के साथ इसलिए कबूल कर लेती है कि बेटियां कभी नहीं चाहती है कि मेरी बाप की इज्जत नीची हो जाए, हाँ मेरी बाप की इज्जत में कमी आ जाए, इसलिए बेटियां अपने बाप के कहने पर उसे कबूल कर लेती है। अगर बेटियां भी चाहती तो अपने मर्जी से शादी कर सकती थी, लेकिन बेटियां बाप की इज्जत मिटाना नहीं चाहती है, बेटियां यही चाहती है, अरे हम तो दुख से जी लेंगे मगर मेरे बाप की इज्जत में कमी आ जाए, ये गैरत वाली बेटी को गवारा नहीं हो सकती है। ये बेटी चाहती है। अल्लाह के महबूब ने कहा ये मुझे भी पता है, लेकिन मैं जा रहा हूं उम्मतियों को सबक देना है, ताकि कोई भी उम्मती अगर अपनी बेटी की शादी करे ना तो पहले अपनी बेटी से राय ले ले, बेटा मैंने फला लड़के का तेरे लिए इंतखाब किया है, मुस्तफा के सुन्नत के मुताबिक करे ना शादी, फिर देखे हमारे घरों में बाहर आएंगी, हमारे घरों में बरकतें आएंगी। आका जा रहे हैं, आका धीरे धीरे कदमों के साथ जा रहे हैं, बेटी फातिमा के घर पहुंचे हैं, दरवाजे पे दस्तक हुई है, दरवाजे पे दस्तक हुई है, अंदर से आवाज आई है, कौन है? बाहर से आवाज आती है, बेटी तेरा बाप मोहम्मद रसूलुल्लाह आया है। हाँ, जब अंदर जा रहे हैं ना आका, दरवाजा खुला, अंदर गए तो बेटी फातिमा आटा गूंद रही थी, आटा गूंद रही थी रोटी तैयार करने के लिए, आटा गूंद रही थी। इतने में आका की एंट्री हुई है। कहा बेटी, बेटी खड़े होकर अर्ज करती है, बाबा
आप बगैर पूछे आप आ गए। आप जल्दी से बैठिए मेरे बाबा जान, मैं एक रोटी तैयार कर देती हूं, आप खा लीजिएगा। हाँ, क्योंकि जब जब आका आते थे ना, सैयदा फातिमा अपने हाथों से रोटी पका करके देती थी, अपने बाप को रोटी बना करके देती थी ताकि मेरा बाप खाए। कहती है बाबा बैठ जाइए, मैं अभी एक रोटी तैयार कर रही हूं, आप रोटी खा करके जाइएगा। आका ने चाह तो साहिब मैं कहना चाहूंगा, बातें तो बहुत सारी है, अलगरज में बताने की कोशिश करूंगा, वाकया पूरा करूं तो बहुत लंबा हो जाएगा। और मैं रब की बारगाह में कहूंगा साहिब कि ये शादी जिस भी बेटी की हो रही है, कल बारात आने वाली है, अल्लाह उस बारात को पाए तकमील तक पहुंचाए। और आप कोशिश करें कि हमारी शादी मजहब इस्लाम के मुताबिक हो, सुन्नत मुस्तफ़ा के मुताबिक हो। हाँ साहिब, अगर घर में बहारें चाहते हैं, घर में बरकतें चाहते हैं, तो इस्लामी कानून अपनाना होगा। अल्लाह के नजदीक सबसे प्यारा मजहब मजहब इस्लाम है। इस्लाम ने जो शादी करने का तरीका दिया है वो किसी मजहब ने नहीं दिया है। इस्लाम ने जिंदगी गुजारने का तरीका दिया है वो किसी मजहब ने नहीं दिया है। इस्लाम ने जो हमें बैठने का, चलने का, हमारी रफ्तार का, गुफ्तार का, हमारे स्टेटस का जो हमारे इस्लाम ने दिया है वो किसी मजहब ने नहीं दिया है। अगर कामयाबी आप चाहते हैं तो गैरों के मजहब को छोड़ना होगा। आज दुनिया के एक्टरों के एक्टिंग को छोड़ना होगा, दुनिया के स्टाइलों को अपने पांव के ठोकर में रखना होगा। अगर स्टाइल अपनाना होगा तो आमना के लाल का स्टाइल अपनाना होगा। हाँ साहिब, मुस्तफा जाने रहमत का स्टाइल अपनाना होगा। हुक्म मानना होगा तो मजहब इस्लाम का हुक्म मानना होगा। हाँ साहिब, जो इस्लाम पे जिंदगी गुजार करके जाता है उसका यहां रहना भी कामयाब हो जाता है, यहां से जाना भी कामयाब हो जाता है। हाँ, तो कोशिश करें कि हमारी सारा काम फितरत इस्लाम पे हो। इस्लाम सबसे खूबसूरत मजहब है, इस्लाम सबसे प्यारा मजहब है, अल्लाह के नजदीक सबसे खूबसूरत मजहब इस्लाम है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम उसी इस्लाम के मानने वाले हैं। तो हम अपने अमाल, अपना किरदार, अपना स्टेटस ऐसा बना ले कि लोग कहे कि देखो यार, जब इस्लाम के मानने वाले का ये आलम है तो इस्लाम बनाने वाले का आलम क्या होगा। हाँ, जब उनकी गदा भर देते हैं शहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा। जमाना कहे कि यार जब मदीने के गुलामों का ये आलम है तो फिर मदीने के मुख्तार का आलम क्या होगा। हाँ, ऐसा स्टेटस लेवल बनाए, इंशाल्लाह आपके बच्चे कामयाब रहेंगे, आपकी बच्चियां कामयाब रहेगी, आपके घर आबाद रहेंगे, इंशाल्लाह मुआशरा आबाद रहेगा। यहाँ जिंदगी में जब तक रहेंगे तब तक आबाद रहेंगे, यहाँ से जाएंगे तो कब्र में भी मुस्तफा जाने रहमत हमें आजाद करा देंगे। हाँ, रब की बारगाह में दुआ अल्लाह तमाम मुसलमानों को एक बनाए, नेक बनाए, मस्जिद मस्जिद मैदान के गाजी बनाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन ज़ंबी व अतूबु अलैह। रही चमन तो फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आइए बड़ी तेजी के साथ खतीबुल हिंद हज़रत अल्लामा मुमताज आलम साहब की का इस्तकबाल कर लिया जाए। इसी खूबसूरत माहौल में नारा लगाता हूं, देखना चाहता हूं, इसलिए कि सारे जगह आप बोलते हैं, यहां वही बोलेगा जिसको यकीन होगा कि मुस्तफा जाने रहमत के सदके में हमें जिंदगी मिली है। अगर ये जुबान मुस्तफा के नाम पे ना बोलेगी, अगर ये हाथ मुस्तफा जाने रहमत के नाम पे ना उठेगा, आज नेताओं के पीछे हाथ उठाया जाता है, आज नेताओं के पीछे नारा लगाया जाता है। साहिब, ये नेता तुझे कुछ नहीं देने वाले हैं, लेकिन मुस्तफा जाने रहमत पे हाथ को उठाओगे, जुबान को उठाओगे, ये हाथ गवाही देगा रब की बारगाह में। अरे सुन मौला, अरे इसने दुनियादार के नाम पे नहीं बोलता था, मदीने के ताजदार के नाम पे बोलता था। हाँ, तो जहां बोलना सीखे ताकि महफिल में जज्बा और सुरूर, कैफ, मस्ती आए, लोगों को लगे कि मिलादे रसूल की अहमियत क्या है। वरना आज कोई सुनना नहीं चाहता है। मुकद्दर वाले लोग, मैंने शुरू में कहा था, मुकद्दर वाला ही नबी की महफिल सुनता है, नबी की बातें सुनता है। और यहाँ जो भी आता है, अल्लाह यहाँ महबूब की महफिल में बैठने के सदके में सबके गुनाहों को माफ फरमा देता है। इससे बड़ी बात क्या होगी साहिब। आप ऑर्केस्ट्रा में जाते हैं, महफिल में जाते हैं, शराब के अड्डों पे जाते हैं, जुआ के अड्डों पे बैठते हैं, पबजी के अड्डों पे बैठते हैं, मैं नहीं जानता कि आपको क्या मिलेगा, लेकिन यहां बैठे हैं, मैं इतना जानता हूं कि यहां बैठने के सदके